morning, students, parents, and all the joining members. It's a great pleasure for me to introduce our guest of honor today. She is excellent, wonderful, and a great actress. So please welcome everybody, Mrs. Hema Kanoi. Her journey started in June 2018 in the field of acting through theaters. She had played emotional character roles in a play popularly called as Pita Rang Tale. And not only emotional roles, she had successfully tried her hands in comedy plays as well, like Chandu Ki Chachi, Uff Ye Mohabbat. Beside acting only for the theaters, she had done many episodic ad serials, short films, and web series. Her famous web movie Scotland has been nominated for Oscars 2020 in the category of Best Featured Film. Wow, ma'am, what a big achievement! It has been released in Hollywood, California, in the Regency Theatre, and it will be soon releasing in India under the direction of Manish Vatsalya. She is an award winning actress, and her movie has received 63 awards all over the world. So, dear students, parents, and all the members, please join me in welcoming the exceptionally wonderful personality, Mrs. Hema Kanoi. We are so happy, we are honored to have you, ma'am, on our stage. Shivam, sir, over to you. Good morning, ma'am. Good morning, Ma'am, Shivam. very good morning and very good morning to all the viewers who are present here and all the students, all the guests who are arrived here just to see you. And we are very thankful that out of your very busy schedule, you have given your time to us and to all the students. I must say, we are very pleased to have you. So, ma'am, आज का जो हमारा सेशन है तो एक मैसेज ऑल द किड्स, आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन कर सकते हैं मैम से, बट यू डोंट हैव टू अनम्यूट योर माइक, यू जस्ट हैव टू राइट योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स. So as I can see in the chat box, students are saying that they are very excited to join this webinar and meet you. That means meet ma'am. Thank you, students. Like this, you can put up your question in the chat box also. So ma'am, our first question to you, very basic, ये है कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? आप जब भी स्टार्टिंग में थी स्कूल डेज में तो क्या माइंडसेट होता था और यहाँ तक आने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन और क्या क्या मुश्किलें, कैसे यहाँ तक पहुंची मैम? थोड़ा सा अगर आप बता पाए हमको तो. First of all, I like to thank Shivam and the Learning Curve, my personal tutor, for giving this platform to me to present myself, to share my views with your students and the other viewers. And अब मैं आपको अपने बारे में क्या बताऊं, मैं कोई बहुत बड़ी पर्सनैलिटी नहीं हूँ. I just follow my passion, and मेरा जैसे I born and brought up in Mumbai, and I belong to a Marwadi family. Marwadi means I am from Rajasthan, and जैसे सिंगिंग का, डांसिंग का और प्ले वगैरह का बहुत शौक था बचपन से ही, मगर क्या करना है ये कभी सोचा नहीं था कि हाँ करना है, कुछ लाइफ में कुछ ऐसा करना है कि लोग तुम्हें याद करें कि हाँ ऐसी कोई पर्सनैलिटी थी या फिर है, बहुत अच्छा करती थी, बहुत अच्छा लगता था और जब भी उसको देखते थे तो वैसे करने का हमेशा से एक शौक रहा था कि कुछ तो करना है लाइफ में. बट डिसाइड करना तो उस वक्त तो इतना कुछ होता भी नहीं था. ठीक है, खेलो कूदो, एंजॉय करो अपनी लाइफ में. और ऐसे करते करते मतलब हमें ऐसे डैडी काफी फ्रीडम देते थे, बट हमारी एक लिमिट होती थी कि हम कोई भी परफॉर्मेंस अग्रवाल समाज के प्लेटफॉर्म तक कर सकते थे. तो वहां पर जैसे हम लोग डांसिंग, सिंगिंग सब करते थे, सब परफॉर्मेंस करते थे. जैसे मैं करती थी अपना परफॉर्मेंस, तो हमने एक प्ले किया था जब मैं कॉलेज में थी. तो हमारा बिरला मैतुशी में टाउन में एक प्ले हुआ था, उसमें मैंने ऐसे रोल किया था जैसे हम पांच में एक टॉम बॉय गर्ल थी. तो वैसा ही कुछ मेरा किरदार था वहां पर. जब मैंने वहां पे परफॉर्म किया तो आफ्टर द प्ले एक सज्जन आए बैक स्टेज और उन्होंने कहा कि ही इज ए डायरेक्टर ऑफ अ फिल्म, और वो जुगल हंसराज जी को लेकर एक मूवी बना रहे थे. उस वक्त पापा कहते हैं बहुत फेमस हुई थी उनकी.
तो आई वाज लाइक ठीक है तो देन ही सेड ही वांट टू कास्ट मी फॉर हिज फिल्म एंड द Wow. कैरेक्टर विल बी सिमिलर लाइक दैट। मतलब उस वक्त ऐसा लगा व्हाट वेयर मैं कहाँ पर हूँ, मतलब अचानक कभी सोचा भी नहीं था कि सीधे फिल्म। मन तो बहुत होता था ब्यूटी कॉन्टेस्ट कर लूं, कुछ एकदम बहुत अच्छी पर्सनालिटी बन जाऊं, बचपन से ही शौक था वो चीज का, बट सीधे फिल्म का ऑफर आएगा ऐसा कभी सोचा नहीं था। मैम ये तो कौन से एज में था अभी उस टाइम इट पे आपका एज? वाज आई वाज इन अराउंड 16 17, मतलब कॉलेज टाइम नहीं ओके, था, वो वाओ। स्टार्टिंग था एंड जस्ट एज अ हॉबी हम लोग परफॉर्म करते थे। तो वहां पे स्टेज में जो परफॉर्मेंस देखी उन्होंने बैक स्टेज आके जब उन्होंने कहा तो मैंने बोला वाह इतना अच्छा था, मतलब इट वाज लाइक मेरे में वो क्वालिटी है। मैं अपने आप से बात कर रही थी कि मेरे में वो क्वालिटी है कि लोगों को अट्रैक्ट करती है, तो व्हाई नॉट गिव दिस टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू योरसेल्फ कि यस आई कैन वाओ। डू इट। और बस मगर उनको मैंने सिर्फ 2 ही शब्द कहे कि यू हैव टू स्पीक टू माय डैड, क्योंकि उस वक्त जैसे पापा बोलते थे वैसा ही चलता था। आज के जमाने के जैसे लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती थी, जैसा चाहिए जैसे डैड बोलते हैं वही सही गाइडलाइंस होता था। तो बट ओके। डैड ने कहा, मतलब उनसे बात हुई थी डायरेक्टर जी की और फिर उन्होंने मुझे बड़ा सारा 1 घंटे का लेक्चर दिया, बेटा ये सारी फील्ड अच्छी नहीं है, इज नॉट गुड फॉर गुड फैमिलीज। कोई अच्छा पढ़ाई कर रही है, सीए कर ले, एमबीए कर ले, लॉयर बन जा तो तेरा लाइफ में नाम बन जाएगा, कुछ लगेगा कि हाँ ये मेरी बेटी है और कुछ अच्छा कर रही है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है। बस सपनों पे पानी फिर गया। कुछ कर लो उस वक्त तो, अनशन कर लो या कुछ भी कर लो, कुछ चलता नहीं था। बस जो है जो बोल दिया एक बार वैसा ही होने वाला है। तो तो फिर मैं आई वहां से आप कैसे कंटिन्यू करें वहां से बस वो? उस वक्त उस उम्मीद को सब मैंने बोले ना पर्दा, क्या क्या कहते हैं उसे कि बंद हो गया वो एक, कि भाई वैसा कुछ नहीं होने वाला, फॉरगेट इट। एंड देन फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लग गई। हाँ बट मैंने अपने बच्चों के साथ भी अपना पैशन फॉलो किया, मैं अपने बच्चों को भी एड्स करवाई है। काफी एड्स किए उन्होंने, नेस्ले नेस्ले के अच्छे अच्छे क्वालिटी वॉल्स के ऐड किए थे मेरे बेटे ने। और वाह। मतलब मेरा एक था कि मेरा एक जुनून था कि भाई एक गर्ल नहीं कर सकती तो बॉय तो कर सकता है मारवाड़ी फैमिली से, तो मैंने उससे वाह। करवाया। बट ही हैज डन, बट एक लिमिट में। जैसे 4th स्टैंडर्ड के बाद में हमारा एक टारगेट था कि भाई 4th स्टैंडर्ड के बाद में स्टडी विल कम एंड देन फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स एंड गो बिहाइंड द स्टडीज। और उसने उसमें भी बहुत अच्छा अचीव किया। वैसे जब वो थोड़े बड़े हो गए तो मुझे फ्री टाइम मिलने लगा एंड आई वाज थिंकिंग व्हाट टू डू, कुछ तो करना है, एक खाली तो बैठने की आदत नहीं, कुछ ना कुछ तो करना है लाइफ में। तो पता नहीं एक अंदर से एक ऐसी आवाज आए कि व्हाई नॉट फॉलो योर पैशन, जो तेरा एक ड्रीम था कुछ बनने का कुछ करने का, व्हाई नॉट यू डू दैट। बस मैंने ऐसे ही हिम्मत करके फैमिली में मेंबर से बात की, बच्चों से, हस्बैंड से, एंड उनके आंसर सुन के आई वाज सो हैप्पी, सो हैप्पी। दे नॉट ओनली सेड कि ओके, दे सेड आई एम बिहाइंड यू। माय हस्बैंड सेड आई एम बिहाइंड यू, यू जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट, जो तेरा मन करता है ना वो कर दो, हर चीज में मैं तेरे को सपोर्ट करूंगा। एंड माय किड सेड मम्मा यू डोंट वरी अबाउट अस, हम बड़े हो गए हैं, हम लोग अपना ध्यान रख लेंगे, जस्ट यू हैव टू फॉलो योर पैशन और आप बहुत अच्छा करो जो आपको करना था। वाह। आई वाज वेरी दैट मीन्स हैप्पी। फैमिली का काफी अच्छा रोल रहा यस आपके करियर में। बहुत अच्छा, जी। बहुत अच्छा। मेरे इन लॉज ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे अंकल ने, मेरे आंट ने, सबने मुझे बहुत बहुत मोटिवेट किया इस चीज के लिए। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, श्याम सर के अंडर में स्पंदन थिएटर ज्वाइन किया। वहां पे मैंने इमोशनल कैरेक्टर्स किए, जैसे उन्होंने मेरी डिटेल्स बताई थी, मैंने पिता और टेल ऑफ टू विडोज ऐसे प्ले किए। जब मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो मुझे पता चला मुझे बहुत कुछ नहीं आता है, जो एक अग्रवाल समाज के प्रोग्राम में करते हैं दैट इज नथिंग, और जो प्रोफेशनल लेवल पर करते हैं दैट इज समथिंग डिफरेंट ओनली। तो इनिशियली तो मैंने बहुत हार्ड वर्क किया एंड जब मैंने श्याम सर को ज्वाइन किया तो उन्होंने भी एक चीज देखी कि आई हैव अ पैशन, मतलब मेरे अंदर एक जुनून है कि मुझे ये करना है।
तो वो जो भी मुझे होमवर्क देते थे, हमारी सैटरडे संडे क्लासेस होती थी खाली, तो मंडे टू फ्राइडे मैं रात दिन अपने काम के साथ उस चीज को पूरा करती थी कि मुझे आज ये वर्ड्स ये हैं, इसको किस तरह से बोलना है, कैसे एक्सप्रेस करना है, कैसे आवाज निकलनी चाहिए, खराश नहीं होनी चाहिए, सब चीज को मैं ध्यान रखती, रिकॉर्डिंग करती, सर को भेजती। सर ऑल्सो सी कि भाई इतने सारे स्टूडेंट आए, बट ये मतलब मुझे बार बार करती, मैसेज भेजती रहती है कि ये सर मैंने कर दिया, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती थी कि सर इसमें क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए। पूरा वीकेंड तक मैं उस चीज को तैयार करके ले आती थी। तो उन्होंने मुझे मैम एक एक्टर, एक एज ए एक्ट्रेस, तो आपका अगर जब भी, अभी तो कोविड का टाइम है तो ऑब्वियसली सारा काम अभी बंद है, कोई शूट नहीं चल रहा होगा, बट जब भी काम चलता होता है तो आपका डे स्टार्ट कैसे होता है और एंड होते होते वो कब तक होता है? क्या 24 आवर साइकिल होता है क्या ये, या जब जो तक कोई एक शूट खत्म नहीं हो जाता तब तक काम चलता ही रहता है, ऐसा कभी छुट्टी नहीं है? ऐसा नहीं है एक्चुअली ना, जिस दिन शूट रहती है उस दिन नो डाउट बहुत हेक्टिक हो जाता है, हैव टू मैनेज द एंटायर हाउस एंड देन हैव टू रश। और वहां जाकर भी जब मैं एक बार वहां सेट पे पहुंच जाती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, दुनिया में कुछ भी याद नहीं रहता, सिर्फ मैं और मेरा काम। बस एक ही चीज रहता है कि मैं इतना अच्छा परफॉर्म करूं कि डायरेक्टर साहब को ऐसा लगे यस शी इज बिहाइंड हर वर्क। मैं अपना काम करती हूँ, और जैसे ही मैं उस स्टेज को छोड़ती हूँ, उस स्टेज को छोड़ती हूँ, उस प्लेटफॉर्म को छोड़ती हूँ, मैं एक फैमिली मेंबर बन जाती हूँ, एक मदर और एक वाइफ बन जाती हूँ, और कुछ नहीं रहती। फिर मैं पूरा कॉन्सेंट्रेट अपनी फैमिली पे करती हूँ, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ मैं उसी पे फोकस करती हूँ। मैं दो माइंड में नहीं वाह चलती कि ये भी करूँ वो भी करूँ, फिर मेरे से वो दोनों काम मैम, नहीं ये होते। बड़ा मुश्किल होता है कि आप अगर दो प्रोफेशन में, लाइक आपका एक तो जो प्रोफेशन है वो एक्ट्रेस है, सेकंड प्रोफेशन एज अ हाउस वाइफ की एक फैमिली को लेके चलना है, तो Yes. जब वो सेकंड वाले रोल में जाओ तो फर्स्ट वाला रोल को भूलना वो बड़ा मुश्किल होता है। वो कैसे करते हैं वो जरा हमको भी बताएंगे? वो बड़ा एक्चुअली मुश्किल होता है, नहीं हो पाता दो इट्स टारगेट को माइंड। एक साथ सेट करना। शिवम ऐसा नहीं है, अगर आप ऐसा सोच लो कि यहाँ मुझे ये काम करना है तो यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू योर वर्क। आज आप बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो अगर वो पढ़ रहे हैं कोई लेवल में है, तो मैं आज मेरी कल एग्जाम है, तो एग्जाम के पहले कैसा फियर आ जाता है उनके अंदर, हाँ कल मेरा पेपर है, मुझे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे पढ़ना। बट आई फील ऐसा नहीं करना चाहिए, ये प्रिपरेशन आपकी शुरू से ही होनी चाहिए। फर्स्ट डे से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि मुझे 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 1 घंटा ये सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जिस दिन आपकी एग्जाम है उस दिन आपको फियर जैसा नहीं लगेगा। यस यस, जस्ट गो थ्रू करना है, एवरीथिंग डन। मतलब प्लानिंग वाह, आपकी शुरू से अच्छी रहनी चाहिए, अगर प्लानिंग अच्छी है तो आराम से, इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, बहुत इजीली आप कर सकते हो। बट हाँ, प्लानिंग जरूरी है, विदाउट प्लानिंग ऐसे ही नहीं आप निकल सकते हो कि चलो आज पूरे दिन रात पढ़ाई करूंगा कल एग्जाम है। ये इज नॉट अ प्रॉपर सक्सेसफुल लाइफ के लिए अच्छी चीज नहीं है। यू हैव टू प्लान बिफोर, हर चीज की प्लानिंग होनी चाहिए, तो फिर सक्सेस आराम से मिल जाती है। जो कीवर्ड निकल के आया वो है प्लानिंग, तो आपकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए यस, प्लानिंग हर होनी एक चाहिए। काम के पीछे। फिर मैंने एंड सेकंड कीवर्ड इज प्रायोरिटी। यस, प्रायोरिटीज आपको ऑल्सो। अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। यस, यहाँ पर ये आज मुझे ये करना है तो ये कंप्लीट ही करना है, मतलब उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कंप्लीट करना है, कर लूंगा करके शाम हो जाए। करना है फोकस करके, उस वक्त बैठकर उस वक्त खत्म करना है उसको, और उसके बाद मैं कुछ भी कर सकता हूँ, देन आई एम फ्री। दैट यू हैव टू गिव इम्पोर्टेंस टू दैट थिंग, कि खाली प्लानिंग करके बस पेपर पे प्लानिंग कर ली और चल रहे हैं, हाँ शाम तक करना है, आज के दिन करना है ना, 24 आवर्स में हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी इसी वक्त मुझे कंप्लीट करना है, और उसके बाद प्रायोरिटीज इज टू बी गिवन टू दैट वर्क। ओके मैम, कुछ कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों की तरफ से। प्रगति सिंह फ्रॉम लर्निंग कर्व, माय पर्सनल ट्यूटर, शी हैज 4 क्वेश्चन। फर्स्ट वन इज, which serial actors and actress did you meet? मैं अभी सूफी से मिली हूँ, मेरे साई में आते हैं, वो आते थे। मुझे मेरे साई में वर्क करने का बहुत बहुत मन था, मतलब मेरे दिल से मन था, बिकॉज मैं इस फील्ड में सिर्फ 2 साल से हूँ, जस्ट 2 years। तो ऐसा, मतलब मैं इतने लोगों को नहीं जानती, बट हाँ जिन जिन से मैं कनेक्ट होती हूँ तो उनसे, उनके थ्रू मैं और बहुत लोगों से कनेक्ट होती हूँ। एक बार अगर मैं किसी से बात कर लेती हूँ और उनके साथ काम कर लेती हूँ, तो ऐसा ऐसा हो जाता है कि यस आई नो, एक फैमिली रिलेशन जैसा बन जाता है उनके साथ मेरा।
मे बी अ ब्रदर, और Yes, मे बी एक ऐसा भी definitely. हो, एक अच्छा फैमिली रिलेशन बन जाता है। तो जैसे मैंने अमीर सूफी जी के साथ काम किया था, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा मेरे साई में भी। और मनीष वात्सल्य जी के साथ जो मैंने काम किया है, ही इज डायरेक्टर ऑफ दिस दशहरा मूवी, उसमें भी उनको अवार्ड मिले थे, और वो आगे भी बहुत सारी मूवीज बना रहे हैं, हाई प्रोफाइल मूवीज बना रहे हैं। तो ऐसा उन्होंने मुझे लास्ट सेंटेंस उन्होंने ये कहा था कि भाई आप, मैं जो भी इन फ्यूचर जो भी फिल्म बनाऊंगा, यू आर अ पार्ट ऑफ इट। मतलब वो कनेक्शन मेरे लिए Wow. दिल में बहुत अच्छा हो गया कि यस, आप जो भी करो दिल से करो, सिर्फ काम करने Wow. के लिए मत करो। अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो दिल से पढ़ो कि यस मुझे पढ़ना है, सिर्फ खत्म करने के लिए मत पढ़ो कि पढ़ लिया हो गया निकल गया आगे, चलो भूल गया उस चीज को। तो Wow. एक वो जुनून रहना And चाहिए हमेशा। question from Tanish from Learning Curve, my personal tutor is, what problem did you face after going first time to industry? हम्म, हाँ प्रॉब्लम्स तो यस, प्रॉब्लम्स जैसे एक चैलेंजेस आए, बहुत सारी चीजें मेरे मेरे दिमाग में कि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक्चुअली देखो तो कुछ भी नहीं पता था जब मैं इसमें गई, मगर एक था कि मुझे इसमें काम करना है। एक खाली वो एक कहते हैं ना, एक मेरा लक्ष्य था कि मुझे इसमें कुछ करना है और मुझे बहुत अच्छा करना है सबके साथ में। जो भी एकदम, जैसे मुझे अमिताभ जी के साथ एक काम करना है, बहुत मन है मेरा, परेश रावल जी के साथ एक काम करना है, तो ऐसे पंकज त्रिपाठी जी के साथ काम करना है, माधुरी दीक्षित जी के साथ काम करना है। एक ऐसे मेरे है कि हाँ इन लोगों के साथ मुझे काम करना है। मैं फैन तो सिर्फ ऊपर वाले Wow. की हूँ, बस जो मेरे अंदर बैठा है उसकी फैन हूँ कि यस वो मुझे मोटिवेट करता रहे और मैं अपना हर काम अपनी पूरी पूरी लगन से करूं। बट हाँ, Wow. लोगों से काम करने का, जैसे शुरू में ऐसे चैलेंजेस आई कि जो मैंने सीखा था और जो अभी है वो क्वाइट डिफरेंट है, बहुत डिफरेंस है उसमें। मगर हाँ, मुझे इतने अच्छे मेंटर मिले जिन्होंने मुझे, जब भी मुझे उन्होंने डांटा तो मैंने उनकी डांट को ऐसे क्रिटिसाइज की तरह नहीं लिया कि वो मुझे डांट रहे हैं, मैं आगे से इनके साथ काम नहीं करूंगी या मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगी, वो मुझसे, मतलब मैंने उनके लिए कभी कोई नेगेटिव नहीं सोचा। मैंने उनके लिए चैलेंज लिया, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये रॉन्ग है तुम्हारा, तो मैं उसके बारे में सोचा कि क्यों रॉन्ग है और मैं किसे कैसे इसे इम्प्रूव करूं, एंड नेक्स्ट क्लास में उसको इम्प्रूव कर कर ले आती थी। देन ही सेड कि यस यू हैव गॉन अहेड, एक स्टेप बढ़ लिया, अब आगे बढ़ोगे हेमा। तो Yeah. वो अच्छा लगता था, मतलब मेंटर अच्छे होने चाहिए उसके लिए। तो चैलेंजेस तो हर Wow. फील्ड में आती है, True. True. बट आपको उस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये मेरा चैलेंज है, Same. इसमें मुझे उसके ऊपर एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, उसे सोचना पड़ता है और उसको पॉजिटिव वे में लेना पड़ता है। मैंने थर्ड जो कीवर्ड निकल के आ रही है वो है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट करना पॉजिटिव, बहुत जरूरी है। हाँ एंड पॉजिटिविटी। पॉजिटिविटी, राइट। या मैम, अनदर क्वेश्चन फ्रॉम जानवी सिंह इज, हु इज योर इंस्पिरेशन इन योर लाइफ? इंस्पिरेशन कौन है? इंस्पिरेशन कौन है? बहुत से लोग हैं मेरे लाइफ में इंस्पिरेशन जैसे। हम्म, मेरे पेरेंट्स हैं मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशंस, मेरे इन लॉज हैं मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशंस, मेरे हस्बैंड है मेरे लिए एक इंस्पिरेशन। मेरे से जितने भी लोग कनेक्टेड हैं सब मुझे इंस्पायर करते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं, जो ये एकदम मतलब जिनके अंदर पेशेंस है, और पेशेंस के साथ उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है लाइफ। जैसे अमिताभ जी हैं, वो उन्होंने कितना हार्ड वर्क किया है, आज वो कितने दिलों में छाए हुए हैं। जैसे परेश रावल जी हैं, मतलब एक डायलॉग मारो तो पहचान जाते हैं यस परेश रावल जी हैं। तो मतलब ऐसे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी जैसे वर्क करूँ और उन तक पहुंच जाऊं। वाह मैम, इवन की जो अमिताभ जी हैं, जब भी एक बार उनका फर्स्ट टाइम, वो एक बार ऐसा था ना, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, तो at that time only relations between India and Pakistan was not going that smooth. Even then वहाँ के जो उनके फैंस थे वो प्रे कर रहे थे कि सर आप ठीक हो जाएं बस किसी तरह। तो उनका जो एक कनेक्ट बन गया है लोगों के साथ, वो बहुत है वैसा ही
एंड इवन कि कल जब उनको एक उनकी रिपोर्ट आई, कोविड पॉजिटिव आई, तो भी लोग इतने सारे वो ट्वीट कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, एंड प्रेयर्स आर ऑलवेज गोइंग। हाँ, सब प्रेयर्स कर रहे हैं उनके लिए। रियली ही इज अ वेरी वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी बोल सकते हैं आप। एंड मैम, इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा एक्टर या एक्ट्रेस है जिसको आप बहुत ज्यादा इंस्पायर कर होती हैं कि उनसे मुझे सीखना है ऐसा? माधुरी दीक्षित कोई है। एक नाम। माधुरी दीक्षित है जिनको मतलब मुझे अच्छा लगता है उनका एक्ट, बहुत मतलब डिसिप्लिन बहुत है उनके अंदर, एक वे ऑफ लाइक बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर कि हाँ इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा लगता है उनका। और वो हर रोल मैम कर देती हैं, ऐसा नहीं है कि खाली हाँ उन्होंने गर्ल का लिया है, मदर का रोल, सास का, स्ट्रिक्ट रोल, कॉमेडी रोल, सब कर लेती हैं। मैम, उनका कोई एक डायलॉग या आपका कोई एक डायलॉग? हाँ ना, अच्छा मैं देवदास का एक डायलॉग बोलती हूँ। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई। क्या दे सकती हैं आप हम? इस समाज में इज्जत दिला सकती हैं, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती हैं, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती हैं। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाए हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ये नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते। वाओ, थैंक यू। वाओ। मतलब मुझे वाओ अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, मूवी भी बहुत अच्छी है देवदास, बट इट्स रियली उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था मुझे। मैम, यू डिड वेरी वेल। अभी बहुत मेरे को पता नहीं था कि इतने जल्दी आप वो आ जाएंगी। जो चीज को हम पसंद करते हैं उसमें आ जाते हैं अपने आप ही। वाओ। एंड जैसे मैम, मैंने जो प्लेस किए थे, आपको कमेंट्स मैं, आर देयर। हाँ बताइए ना। कम ये कमेंट्स आ रहे हैं, ये ओ माय गॉड तनेश, ओ माय गॉड प्रगति, अमेजिंग मैम, वाओ दिव्यांश, अलका सिंह, ओ एम जी, पूजा सिंह, जस्ट ऑसम मैम, योर एक्टिंग इज अमेजिंग। में बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक वाओ यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं मैम, आपको एक आपकी बात, एक मूवी है। हाँ हाँ, हम्म, प्लीज प्लीज। एक बात बताना चाहती हूँ अबाउट माई प्ले पिता। इस लाइक ये प्ले कमर्शियल बेसिस मतलब 2-3 बार हो चुका था। जब मैंने स्पंदन थिएटर ज्वाइन किया तो मैं कुछ करना चाहती थी। ये फील्ड ऐसी है कि आपको 1 मिनट में भी कोई भी रोल नहीं मिलता, आप कितने भी अच्छे एक्टर हो। अगर आप जैसे ही इस फील्ड में घुसते हो, जैसे कोई भी किसी भी चीज में, इवन आप स्टडी में भी घुसते हो, तो आपको फर्स्ट डे क्लास में आपको खड़े करके ऐसे नहीं बोला जाता है हाँ ही इज द बिग अचीवर, अनलेस एंड अनटिल आपके पीछे आपने कुछ काम किया हो तो उस बारे में। तो जैसे मैं इसमें गई थी सीखने के लिए, तो मैंने 1-2 महीने इसके अंदर ट्रेनिंग ली, और सर एक प्ले कर रहे थे पिता, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। इनिशियली मेरा कोई रोल नहीं था उसमें, मेरा कोई कैरेक्टर ही नहीं था, बट मुझे करना था उसमें, एक था, मगर मैं सर को बोल नहीं सकती थी सामने से कि सर मुझे ले लो, क्योंकि मैंने अभी ज्वाइन किया है। लोग सालों तक थिएटर करते हैं, उसके बाद उनको कहीं एक रोल मिलता है, वो भी क्या, एक पेड़ बना दिया जाता है, बस 3 घंटे तक एक पेड़ बन के खड़े रहो। वो भी बड़ा रोल होता था। मैं सुनती थी तो यहाँ मुझे पेड़ वेड़ नहीं बनना है, मतलब मैं अपने मन में सोचती मुझे पेड़ नहीं बनना है, मुझे कुछ अच्छा करना है, मन में सोचती थी वो, कभी किसी को कहा नहीं होगा। तो एक एक मन में एक एटीट्यूड होना चाहिए, यस आई वांट टू डू दिस, और उसके बारे में हमको सोचना चाहिए कि मुझे बहुत अच्छा करना है, और उसी तरह से हमको हार्ड वर्क करना चाहिए। तो मैंने सर को कहा कि सर मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, तो बोले अभी तो इसमें कोई रोल नहीं है, बट विथ माई हार्ड वर्क ही हैज रिटन अ स्क्रिप्ट फॉर माई सेल्फ, मेरे लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई और उसमें मुझे कैरेक्टर को जोड़ा गया। लाजो जी करके मेरा उसमें एक था पार्ट, एंड जब मैंने वो प्ले किया था, मेरी फैमिली से 100 मेंबर्स आए थे, and all my relatives, all my on that platform, ये बैंड्रा में हुआ था, रंग शारदा थिएटर में, एंड वो थे, ये वो थिएटर था जब मैंने इस फील्ड में जाने का सोचा जून में,
तब मैं फर्स्ट प्ले देखने गई थी कि कमर्शियल प्ले कैसा होता है। तो मैं देखने गई थी, तो एक रंग शारदा में मेरे हस्बैंड लेके गए थे, हमने भी प्ले देखा था। उस वक्त मैंने सोचा था काश जब मैं सीख लूं तो मेरा फर्स्ट प्ले यहीं पर हो। एंड सी गॉड की मतलब भगवान की इच्छा कैसी होती कि मेरा फर्स्ट प्ले उसी थिएटर में हुआ और वहां मैंने वाह परफॉर्म किया और मेरी सारे रिलेटिव्स वहां थे। इट वॉज नॉट अ कंपल्शन फॉर एनी ऑफ माई रिलेटिव, बट वो मेरे से इतने कनेक्टेड थे, सारे के सारे रिलेटिव्स वहां थे। एंड एट द एंड व्हेन द स्टेज मतलब थिएटर जब प्ले खत्म हुआ तो फर्स्ट मेरी लॉस ने इतनी मुझे ब्लेसिंग दी, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी दिल से ब्लेसिंग दी ना। आई वाज सो हैप्पी कि लाइफ में अगर कुछ करो ना तो अपनों के लिए तो सबसे पहले करो। जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, जिन्होंने तुम्हें लाइफ दी, अगर तुम उनके लिए नहीं कर पाए तो फिर क्या फायदा। मतलब मेरा एक एम है कि भाई मैं उनके लिए तो जरूर करूं जो अपने हैं। पहले तो अपनों को गिनो कि जो मेरे एकदम कनेक्टेड है ब्लड रिलेशन से, जिन्होंने मुझे बचपन से देखा अभी तक, वो देख रहे हैं एक मारवाड़ी घर की लड़की कमर्शियल स्टेज पे एक्ट कर रही है और पेरेंट्स क्लैप कर रहे हैं। फिर लाइक वाह, मतलब जो 20 साल पहले होने वाला था वो 20 साल बाद हो गया, मगर हो गया लाइफ में। वाह वाह, तो दैट इज अल्टीमेटली जो गोल अचीव हुआ वो होना चाहिए। एंड वाह माई मैम, मेरे वेरी मेंटर। इंस्पायरिंग। और सबसे बड़ी बात, जब मेरे श्याम सर से ये पूछा गया था, काफी लोगों ने उनके जो पहले देख चुके थे प्ले, उन्होंने उनसे पूछा था कि सर आपने ये कैरेक्टर पहले कहाँ था, लाजोजी करके आपका तो कोई कैरेक्टर आया ही नहीं था, आपने तो ये प्ले बहुत बार किया हुआ है। तो बोले आज तक मुझे ऐसी लाजोजी नहीं मिली, इसीलिए मैंने अभी तक ये कैरेक्टर को छुपा रखा था। दैट वॉज अ ग्रेट कम, एक कॉम्प्लीमेंट थी मेरे लिए कि यस इन 2-3 months आई अचीव्ड वो जो मुझे चाहिए था उनसे। मैम वो टाइम का कोई एक डायलॉग अगर आप। हाँ, मैं उनके साथ का एक डायलॉग जरूर बोलूंगी। मैंने प्ले किया था टेल ऑफ टू विडोज। उसमें दो विडोज की स्टोरी है, दोनों गांव की हैं। तो उसमें मैंने मैं विडो के कपड़े पहनती हूँ। दो मेरे हस्बैंड जिंदा हैं, बट उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलके कुछ गलत काम किया था, ऐसे गांव में फैला दिया गया था, तो उन्हें उनसे गांव निकाला दिया गया था उनको। तो मुझे एक्ट करना था कि मैं मेरे हस्बैंड जिंदा ही नहीं है, मैं उनको मानती ही नहीं थी कि वो जिंदा है करके। तो वो चुपके से आते हैं हमारे घर में कुछ चोरी करने, कुछ पेपर्स वगैरह कुछ लेने आते हैं। मैं उस वक्त सोती रहती हूँ, तो मैं उठकर उनको ऐसा कहती हूँ कि हम्म, मुरली, मुरली तो समझता क्यों नहीं, चाचा जी मुझे और राधा भाभी को जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, और अगर मेरा अपना बच्चा होगा तो दुनिया का कोई भी कानून तेरे दादा की वसीयत से मेरे बच्चे को इसका हिस्सा देने से नहीं रोक पाएगा। मुरली, मुरली मुझे मेरा बच्चा चाहिए, प्लीज मुरली। ये डायलॉग था उसमें। और ऐसा ही मैं अपनी भाभी से कहती हूँ। राधा भाभी थी मेरी जेठानी, मेरी भाभी। मैं सिर्फ आपको अपने हाथों से ही सिंदूर लगाने से मना कर रही हूँ। आपकी मांग में तो सितारे हैं, और सितारों से आपकी मांग भरने वाले हाथ आज खुद अपनी मांग सजाने आ रहे हैं। भाभी, आपका सुहाग वापस आ रहा है, वो जिंदा है भाभी, वो जिंदा है। इट वाज लाइक दिस। वाह वाह मैम, टू गुड। कोई वर्ड नहीं है मेरे पास, अभी कोई वर्ड नहीं है कि आप इतने जल्दी वो। मुझे एक्चुअली हम पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं लाइव किसी एक्टर या एक्ट्रेस से, अब मुझे पता नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि वो सीन के लिए बहुत पहले से जरूरत होती होगी प्रिपेयर करने के लिए, बट आप ऑन द स्पॉट जो भी कर रही है मैम, वो एक्सेलेंट। अरे बहुत ही ये सब एक खतरनाक। जुनून है, एक पैशन है ना। अगर आप अपने ड्रीम्स के पीछे फॉलो करो तो सक्सेस मिल ही जाती है, बस एक चाहत होनी चाहिए दिल में करने की। राइट, सही बात। फिर मैम आपकी एक अवार्ड। हाँ प्लीज प्लीज। ओके, अभी मैंने उसके बाद में फरीद सर के साथ ज्वाइन किया था, कॉमेडी कैरेक्टर्स प्ले किए थे। उसमें मुझे लीड रोल मिला था, बट एज ए स्ट्रिक्ट आंटी थी। सारे कॉमेडी, बहुत बहुत सुपर कॉमेडी प्ले है। चंदू की चाची, ये ओवरऑल इंडिया में किया है उन्होंने प्ले, एंड इट्स सुपर कॉमेडी प्ले।
और इसमें मैंने एक उफ ये मोहब्बत की थी उनके साथ, उसमें भी मैंने लीड कैरेक्टर किया था। तो उसके अंदर का एक डायलॉग है, जब ये दो, उसमें कैसे होता है, ये बहुत सिंपल सी स्टोरीज है। जैसे मदर रहती है 40 इयर्स, फादर रहते हैं 42 इयर्स, दोनों की जो कपल रहता है दोनों एक्सपायर हो जाते हैं, दोनों सिंगल रहते हैं। तो मदर की लड़की डॉटर रहती है और फादर के सन रहता है, एक ही एरिया में रहते हैं हम लोग। तो लड़का लड़की में प्यार होना चाहिए, बट यहाँ मदर और फादर में प्यार हो जाता है। तो वो ओके। बताना चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई अगर तुम विडो हो तो तुम शादी नहीं कर सकते, या तुम्हारी वाइफ नहीं है तो तुम शादी नहीं कर सकते। और प्यार करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है कि भाई यंगस्टर ही प्यार कर सकते हैं। एक एज के बाद एक सपोर्ट चाहिए रहता है, प्यार खाली अट्रैक्शन ही नहीं होता है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बात करने के लिए इंसान चाहिए रहता है। इसलिए उन दोनों में प्यार हो जाता है। और यहाँ जहाँ बेटा बेटी का होने वाला था रिलेशन, उसके बदले वो भाई बहन बन जाते हैं और मदर फादर की वाह। शादी हो जाती है एंड में। तो उसमें एक वाह। ऐसा डायलॉग था कि वो मदर, मैं जैसे मदर हूँ, तो वो हम लोग दोनों चुपके से मिलना चाहते हैं, अब घर में ही मिल रहे होते हैं, और अचानक बेटा और बेटी दोनों मूवी देखने गए रहते हैं, वो आ जाते हैं दरवाजे पे और आके चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी आपको शर्म नहीं है, ये क्या कर रहे हो एंड ऑल। तो मुझे ऐसा बहुत फील हो जाता है। तो वो मेरी बेटी रहती है लीला, उसको मैं कहती हूँ लीला। मैं अपने अकेलेपन से उकता चुकी थी। मैंने सोचा कुछ वक्त मिस्टर मेहता के साथ गुजार लूं, कुछ अपने दर्द उनसे कहूं और कुछ उनके मैं सुनूं। लेकिन तुम लोगों ने कुछ सुनने सुनाने का मौका ही नहीं दिया, बस आते ही बरस पड़े। मतलब ये डायलॉग था, इट वाज लाइक बहुत ही बहुत, अच्छा। हाँ मतलब डीप वो मीनिंग है मैम। ऐसे ऐसे काफी सारे अच्छे डायलॉग थे उसमें, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग थे, तो ऐसे एंजॉय करते मैम रहे। आपकी आपकी जो ये मूवी अभी है, स्कॉटलैंड है एंड ऑस्कर के लिए नॉमिनेट है। हाँ, एंड पहले तो हम अपनी टीम और अब हमारे सारे व्यूवर्स के साइड से बहुत बहुत बधाई एंड ऑल द बेस्ट थैंक यू कि सो मच। ये आपकी कि बहुत अर्ली जर्नी में ही आप इतना कुछ आप अचीव करते जा रही हैं। वी होप कि आप और भी आगे ऐसे सितारों ऐसे बढ़ते चले जाएं। मैम थोड़े उसके बारे में बताएंगे क्या, स्कॉटलैंड के बारे में? हाँ, तो ये स्कॉटलैंड कैसे गए, मैं एक शूट पर गई थी, वहां पर मुझे एक कास्टिंग वाले मिले थे, उन्होंने कहा कि ऐसी एक मूवी बन रही है, आप वहां जाएंगे क्या, एक डॉक्टर का रोल रहेगा, एक ही दिन का रहेगा। मैं बोली ठीक है, जाने में क्या है, जरूरत, जाकर देखूंगी, मिलूंगी तो पता चलेगा। तो मैं मनीष सर के पास गई, मैं उनको शुरू में जानती नहीं थी। मनीष सर और पीयूष सर वहाँ बैठे थे। आई जस्ट एंटर, उन्होंने मेरे से बात की कि ऐसे ऐसे हम मूवी बना रहे हैं, तो आप करेंगे क्या, शायद एक दिन का रोल रहेगा। मैं भी सर, मैं आई एम रेडी टू डू एनीथिंग, अच्छा रोल रहना चाहिए, और मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ। आई एम अ थिएटर आर्टिस्ट, मैं सीख रही हूँ, मैं आपको नहीं बोल सकती मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, मुझे सब कुछ आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई एम लर्निंग। बट मैं हर इंसान से सीखती हूँ, और मैं सीखकर हर चीज को दिल से करती हूँ। तो आपको मेरी तरफ से कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी, और अगर मैंने किसी चीज की कमिटमेंट कर दी तो मैं वो करती ही हूँ, चाहे उसके बाद मुझे बहुत बड़ा ऑफर मिले, मगर जो मैंने बोला है वो मैं पहले कंप्लीट करूंगी। तो उसी तरह से उन्होंने मेरे से बहुत देर तक बात की, आधे घंटे तक हमारी बात वगैरह हुई। एंड लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि मैम एक्चुअली हम आपको फुल मूवी में रखेंगे, इज नॉट वन डे कैरेक्टर। आपकी पर्सनैलिटी हमें इतनी अच्छी लगी, आपसे बात करके हमें इतना अच्छा लगा, आई फील लाइक हम आपको पूरी मूवी में रखेंगे एज अ लीड कैरेक्टर की आंटी बनोगी, आपके घर में सब आएंगे, इज लाइक टोटली लाइक फुल मूवी में आप हमारे साथ हो। आई वाज सो हैप्पी। एंड एंड ऑफ द मूवी मुझे ये बात पता चली कि वो कैरेक्टर रखने ही वाले नहीं थे, एज अ मेल कैरेक्टर रखने वाले थे, बट आफ्टर मीटिंग मी दे पुट मी फॉर द इन द एंटायर मूवी, एंड वो मूवी ऑस्कर तक पहुंच गई। आई वाज सो हैप्पी। मतलब भगवान साथ कितना देता है, अगर इच्छा से दिल से अगर कोई चीज काम करते हैं हम, तो ऊपर वाला जरूर हमें साथ देता है। वाह। मैम स्कॉटलैंड का थोड़ा सा अगर हमको, अभी तो यहाँ इंडिया में रिलीज हुआ नहीं है, इफ कि अगर अलाउड है तो थोड़ा सा हमको उसके बारे में बताएंगे क्या, या एक हाँ, कोई एक डायलॉग? ये एक थ्रिलर मूवी है, जैसे एनआरआई है,
वो डॉक्टर वो अपनी बेटी के साथ इंडिया आते हैं, तो यहाँ एक मिनिस्टर के साथ उनका उठना बैठना होता है। वो मेरे ही घर पे आते हैं, हमारे साथ रहते हैं, तो वो उनका उठना बैठना होता है सबके साथ में, मिनिस्टर के साथ में। तो ये रेप स्टोरी होती है जैसे नॉर्मल होती है, मिनिस्टर के बेटे ने रेप किया रहता है, उनके जो डॉटर आती हैं तानिया तानिया इसमें रहती है, तो वो एक सदमे में चली जाती हैं। तो उस तरह से वो किस तरह से रिवेंज लेते हैं। उनके डैड एज अ डॉक्टर है, सब डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं भी डॉक्टर हूँ, वो भी डॉक्टर है, हम न्यूरो सर्जन। तो वो मेरा ऑपरेशन करने के मतलब हमारा सबका ऐसा कैरेक्टर है कि लास्ट में वो रिवेंज लेते हैं। बीइंग अ नॉर्मल पर्सन, एक पिता को कितना हर्ट होता है, उसमें इमोशंस भी दिखाए हैं, उसमें एक्शंस भी दिखाए हैं, उसमें कॉमेडी भी दिखाई है, और किस तरह से वो उस चीज में सक्सेस पा लेते हैं वो भी बताया है। मतलब एक अच्छा बहुत ब्यूटीफुल वे में मनीष सर ने उसको प्रेजेंट किया है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल वे में किया है। तो इट इज वाह अ मैम। गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। मैम एक क्वेश्चन है बच्चे की तरफ से। मैम, हाउ डू यू रिमूव योर नर्वसनेस इन फ्रंट ऑफ कैमरा? ये कृतिका प्रधान जी ने पूछा है। कैमरे के सामने कैसे आप, या फर्स्ट टाइम जब भी आप कैमरे के साथ आई होंगी, वो नर्वसनेस तो होता होगा, उसको कैसे आपने टैकल किया था? एक 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 चीज बताती हूँ जो सब नहीं बताते। बिफोर यू गो टू एनी वर्क, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करना, अपने आप से बात करना और अपने ईस्ट को याद करना कि यस आई विल डू इट, थैंक यू फॉर गिविंग दिस प्लेटफॉर्म टू मी, एंड जो मैंने सोचा है वो करके आऊंगी, और मुझे इतना सपोर्ट करना कि जो मैं कर रही हूँ सबको पसंद है। वाह, मतलब दैट एक मीन्स मेडिटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे आप वो एग्जाम पेपर में लिखने जाओ, चाहे वो कैमरे के सामने जाओ, चाहे वो आप स्टेज में किसी के सामने परफॉर्म करने जाओ। सिर्फ 2 मिनट अपने आप को दे दो। उस वक्त आपके साथ कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ आप अपने अकेले होने चाहिए। उसके अंदर उस वक्त आपकी आंखें बंद होनी चाहिए, आपका दिल और आपकी आत्मा, आपका माइंड, सब कुछ अपने भगवान से कनेक्ट होना चाहिए कि यस, उनको 100 टाइम्स आपको थैंक यू बोलना चाहिए, और फिर अपने काम पर लग जाना चाहिए। और यही वाह। चीज मैं अपने बच्चों को भी बोलती हूँ, जब भी आप एग्जाम पेपर में जाओ, किसी से बात मत करो, जाओ बैठो, आंखें बंद करो, 2 मिनट अपने नारायण का ध्यान रखो, और फिर जब पेपर मिलता है तो बस उस पेपर को फोकस करो। उस वक्त ये मत पूछो क्या आंसर राइट क्या रॉन्ग, कुछ मत पूछो, करने के बाद में भी उस पेपर के बारे में मत डिस्कस करो, और सीधे घर पर आओ and plan for the second day. Correct. That means we have to be connected with spirituality also. Yes, 100%, बहुत ज्यादा जरूरी। मेडिटेशन हर फील्ड में जरूरी है, हर फील्ड में, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो स्टडी हो, चाहे वो बिजनेस हो, एनीथिंग, एनीवेयर, वेरेवर यू गो, 1 मिनट का मेडिटेशन। मेडिटेशन इज व्हाट? आपको अपने से बात करनी है, अपने पे फोकस करना है। आज के मैम नए जनरेशन के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, तो उनको हमेशा ये चीज में, दो चीज में कंफ्यूजन रहती है कि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो फिर मैं स्पिरिचुअलिटी में बिलीव क्यों करूँ, क्योंकि उसका कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, अगर आप ऐसे बोलते हो तो इतनी सारी साइंस ने डेवलपमेंट कर लिया, इंसान मर के कहाँ जाता है किसी को पता है? और इंसान जन्म कैसे होता है उसका किसी को पता है? आज तक साइंस ने वो क्यों नहीं बताया कि जब वो सांस रुक जाती है तो वो आदमी कहाँ जाता है, और वो कहाँ से वापस आता है, जब वो बच्चा पैदा होता है तो कहाँ से उसकी ब्रीद आती है, ये कैसे नहीं पता कर सके साइंस वाले? तो कुछ तो है, कहीं पर कुछ तो है जो आपको कनेक्ट एनर्जीज करता आर है। आपको ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज आर। बहुत है, बहुत है। आप अगर किसी झुंड में खड़े हो, आप किसी पार्टी में जाते हो, तो आप देखोगे कि आप अकेले रहते हो, चलो आप एकदम नई जगह पर गए हो, कोई आपको जानता नहीं है, खाली जो आपका जो होस्ट है आप उससे मिलने गए हो, उससे मिले, फिर आप एक कॉर्नर में खड़े होते हो, फिर आप धीरे 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 एक झुंड की तरफ अट्रैक्ट होते हो। क्यों होते हो? अगर आप पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव लोगों से कनेक्ट होते हो, अगर आप नेगेटिव हो तो नेगेटिव लोगों से कनेक्ट होते हो। दिस इज कॉल्ड नेचर। ये साइंस नहीं बताता,
मगर Right. दिस इज कॉल्ड नेचर, ये नेचर है, ये नेचर हमसे बात करता है। आप अगर कुछ चाहते हो तो इस नेचर से पूछना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है, उससे पूछना पड़ता है मैं ऐसा करूं, हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, यस, और मुझे सपोर्ट मिलेगा, प्लीज मुझे सपोर्ट करना। दिस इज लाइक, ये अंदर से आपको जिस दिन फील हो जाएगा ना, आपको सक्सेस ऐसे ऐसे मिलने लग जाएगी, अब अपने आप लोगों से कनेक्ट होने लग जाओगे। जो जो आपका थॉट है उस हिसाब से आप कनेक्ट होते हो। आपको जो अच्छे लगते हैं, आप क्यों अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह सोचते हैं। आपको जो अच्छे नहीं लगते, क्यों अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो आपकी तरह नहीं सोचते। तो इट इज अगर लाइक लाइफ में मैम, अगर लाइफ में कभी ऐसा हो जाए कि जो आपके तरह नहीं सोचते हैं, वो भी, अगर उनको भी साथ लेके चलना है, तो फिर क्या करें? तो फिर कैसे लेके चलें? क्योंकि तो हमेशा फिर एक्टर एक बन सोच। जाओ। दिखाओ मत कि आपको अच्छा नहीं लगना है, क्योंकि एक्टर का क्या काम होता है, अगर उसके अंदर दिल में दुखी भी है, अगर उसको हंसना है तो और हंसाना है तो वो हंसता ही रहेगा। वो ये नहीं सोचेगा मैं दिल में दुखी हूँ, वो तो उसको बंद करना ही पड़ता है। ही हैज टू शो और शी हैज टू शो अपना फेस, अपना एक्सप्रेशंस, अपनी वॉइस, उसकी हंसी आनी चाहिए, लोग हंसने चाहिए, वो अंदर से कितना भी दुखी हो। 4 दिन से उसने खाना नहीं खाया, डजंट मैटर, आज उसको हंसाना है तो उसे हंसाना ही है सबको। सिंपली, नाइस। एकदम क्लियर मैम, फंडा है। एक क्वेश्चन हाँ एक बोलिए। क्वेश्चन स्पेशली बेस्ड ऑन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडियन की एक मेंटालिटी होती है कि हमारा बच्चा जो है वो एकेडमिक्स में ही बहुत अच्छा करे तो ही वो उसके लाइफ सक्सेसफुल है। एक जनरल सी मेंटालिटी है नॉर्थ इंडियन की, और बहुत से अन्य जगहों की ये मेंटालिटी होती है। तो क्या ये सही है, और अगर गलत है तो किस हद तक गलत है? मैं इसे सही और गलत में नहीं बोल सकती हूँ। द थिंग इज, अगर वो ऐसा सोचते हैं आज की डेट में, तो नॉट, हमें क्या अपनी सोच किसी और पर नहीं थोपनी चाहिए। बच्चों को खुद सोचना चाहिए कि मुझे क्या फोकस करना है। अगर जैसे बच्चों को खुद को करना है कि मुझे पढ़ना है, तो मुझे उसी चीज का शौक है, मुझे पढ़ाई का पैशन है, तो मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा, बड़ी बड़ी डिग्री दूंगा। मगर मुझे ऐसा लगता है सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, स्पोर्ट्स करना चाहिए, बहुत सारी अदर चीजें हैं जो बच्चों को करना ही चाहिए। क्योंकि अगर वो ओवरऑल फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा उनका, तो खाली ब्रेन डेवलप करके क्या करेंगे, एक मशीन बन जाएंगे। तो मशीन नहीं बनना है उनको, दे हैव टू मूव देयर। उनको अपने बारे में सोचना चाहिए कि मैं अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज आई कैन डू कोई भी चीज हो, चाहे वो उनको सिंगिंग का शौक है, डांसिंग का शौक है, और म्यूजिक का शौक है, जिससे उनको पीस मिलता है, गेम्स का शौक है। नॉट, आई एम नॉट सेइंग अबाउट द वीडियो गेम्स, फिजिकल गेम्स, कि वीडियो गेम्स तो पढ़ाई करते करते भी खेल लेते हैं लोग, वो स्ट्रेस तो उनकी आंखों पर ऐसे भी बहुत आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, एट द एंड व्हाट, चलो आपने पीएचडी कर ली और बहुत बड़े डॉक्टर बन गए, बहुत कुछ कर लिया, अचीवमेंट कर लिया, बट एक लास्ट में आपको रिग्रेट होगा, यार मेरे को और भी बहुत कुछ करना था, वो सब तो मेरा मिस ही हो गया। लाइफ एक ही बार मिलेगी, बार बार नहीं मिलेगी। आई फील इतनी सी छोटी सी जिंदगी में जितना कर सको, टाइम इज रनिंग, यू हैव टू रन विद टाइम एंड यू हैव टू प्लान योर रनिंग। ऐसे आंख बंद करके भागोगे तो भी नहीं पॉसिबल है उस चीज को पहुंच पाना। हाँ, इसलिए करेक्ट। आई गेस पढ़ाई तो करनी ही चाहिए। पढ़ाई इज, देयर इज नो चॉइस इन स्टडी, स्टडी तो करनी ही चाहिए, एक लिमिट तक स्टडी करनी चाहिए, बट सिर्फ पढ़ाई आई डोंट प्रेफर। पढ़ाई के साथ अपना सारा जुनून, सारा पैशन फुल फ्लेज कर लेना चाहिए, नहीं तो बाद में रिग्रेट होगा लाइफ में कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। सही बात है। तो ओवरऑल मैसेज ये निकल के आ रहा है कि लाइफ है अनप्रिडिक्टेबल है, सो जस्ट वी हैव टू कीप ऑन लिविंग इट। एक प्लॉट बना के उसको नहीं चलाना चाहिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने देना चाहिए। यस, पढ़ाई भी करनी है, सब कुछ साथ साथ में सब कुछ करना है। यस, यू हैव टू, मतलब अदरवाइज कैसा होगा, लाइफ इज मूविंग, पता नहीं आगे आपको ऐसा मौका मिले ना मिले, आज तो मिल रहा है, आज तो कर लो, कल का कल देखेंगे। लिव इन प्रेजेंट। राइट। एक कोई मैम प्रॉब्लम आ रही है, आई कांट सी यू एट टेक्निकल टीम। क्या आपको दिख रही है क्या? स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? वी आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प अस? Yes, ma'am is visible.
Okay. Ma'am, next question is from Abhishek Singh. Okay. He want to ask how to keep mind healthy because आज के लोग पूरा टाइम ऑक्यूपाइड रहते हैं, कुछ ना कुछ काम में दिन भर लगे रहते हैं, कुछ नहीं भी करते रहते हैं तो भी फोन में लगे रहते हैं, टीवी सीरीज बहुत सारे कुछ, ये हमेशा ऑक्यूपाइड रखते हैं, खुद के लिए टाइम नहीं देते। तो उनका वही क्वेश्चन है कि अपने दिमाग को कैसे हेल्दी रखें। तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अभी तक कहा मैंने, मेडिटेशन इज द बेस्ट थिंग, वो सबसे बड़ी मेडिसिन है माइंड के लिए। आंखें बंद करके अपने आप से बात करो, प्रायोरिटीज को सॉर्ट करो, कौन सी प्रायोरिटीज है आपके लिए, उस हिसाब से आप काम करो। क्योंकि पूरे दिन ऐसे ऑक्यूपाइड रहोगे तो एंड ऑफ द डे व्हाट, खाली स्ट्रेस ही रहेगा आपके दिमाग में। स्ट्रेस से अगर आपको फ्री होना है तो सबसे अच्छी चीज है मेडिटेशन करो थोड़ी देर। थोड़ी चीज वो करो जो आपको पसंद है, चाहे वो बहुत ही बकवास चीज हो, मगर जो आपको पसंद है। किसी को चिढ़ाना पसंद है, ठीक है, जाओ और थोड़ी देर चिढ़ा कर आ जाओ, सामने वाला इरिटेट होएगा बट आप तो फ्रेश हो जाओगे। तो आपका माइंड तो रिलैक्स हो जाएगा। तो वो चीज कर लेनी चाहिए। कोई स्टुपिडिटी हो चलता है, इज ओके, मगर आपको जिससे खुशी मिलती है ना वो करनी चाहिए। बट कोई क्राइम नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे पॉकेट मारना पसंद है तो मैं किसी का पॉकेट मार के आ जाऊं, वो गलत है। मगर जो चीज आपको खुशी देता है ना वो करना चाहिए। 5-10 मिनट्स तो दिन में दे ही सकते हैं अपने आप को। राइट राइट। मैम एक और क्वेश्चन है, सिन्हा सर के नाम से है। मेनी पेरेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन को करिकुलर एक्टिविटीज, हाउ टू मोटिवेट देम? क्योंकि बच्चे तो करना चाहते हैं बट पेरेंट्स नहीं करते, तो ऐसा कैसे उनको समझाएं या उनके लिए क्या मैसेज देना चाहती है? ऑब्वियसली आपने बोल दिया है कि माइंड और ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहिए, बट वो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें, उनके लिए क्या मैसेज है? पेरेंट्स से बात करके, अगर बच्चा मैच्योरली बैठकर अपने पेरेंट्स से बात करता है कि मैं आपको रिजल्ट्स दूंगा, आप रिजल्ट्स की चिंता मत कीजिए, मैं हार्ड वर्क करूंगा और मेरी जो स्टडी टाइम है उसी में से मैं अपना टाइम निकाल के अपने स्पोर्ट्स में डालना चाहता हूँ या म्यूजिक में डालना चाहता हूँ। और जब वो म्यूजिक और स्पोर्ट्स शिद्दत से करेगा, अगर दिल से करेगा वो चीज, और जब पेरेंट्स को दिखेगा अरे वाह क्या पियानो बजाता है, क्या गिटार बजाता है, और मतलब जब वो सुनेंगे पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली उनका माइंड है, आफ्टर ऑल वो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों के लिए ही जीते हैं, वो उनको समझते हैं। बट कैसा होता है, पेरेंट्स सोचते हैं ये सब चीजें करेगा तो पढ़ाई तो छोड़ देगा, ऐसे ही तेरे को बड़ी मुश्किल से 20 मार्क मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। तो वो चीज उसको 20 का उसको 30 लाना है। अगर 50 में से उसको 20 मिलता है तो उसका टारगेट होना चाहिए मुझे 30 मिलना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट मुझे मेरा पैशन भी फॉलो करना है, मुझे म्यूजिक सीखना है जो मुझे पीस देता है, मुझे डांस करना है जो मुझे पीस देता है। मैं उसी स्टडी टाइम में से वो टाइम यूटिलाइज करूंगा और रिजल्ट्स दूंगा। पेरेंट्स को एक बार रिजल्ट दे दे बच्चा तो आई एम डैम श्योर कोई भी पेरेंट ना नहीं बोलेगा, वो उल्टा सपोर्ट करेगा कि यस। But ma'am, nowadays, na, parents are not listening anything. They are dominating their own children. है ना? What they are now unable to get and succeed in their life, they are just trying to fulfill by their children. This is the problem for the present time. Parents जहाँ जहाँ अनसक्सेसफुल है अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो वहीं पे सक्सेसफुल हो, है ना? तो बच्चे चाहते हुए भी वो चीजें नहीं कर पाते और वो अपने सपनों को थोप रहे हैं बच्चों पे। बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रहे हैं इन सारी स्थिति से। तो व्हाट इज योर सजेशन मैम, हाउ टू मैनेज दैट? ओके, आई गेटिंग मैम क्वेश्चन मैम ना, कि कैसे मैनेज करें पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन। और इसमें हम टीचर्स को बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है मैम। कई बार देखना पड़ता है कि हमें बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो वर्किंग क्लास आज का जमाना है, हस्बैंड भी वर्किंग है और वाइफ भी वर्किंग है, दोनों चले जा रहे हैं। बच्चे मैक्सिमम टाइम अपने टीचर्स के साथ स्पेंड कर रहे हैं, स्कूल में या फ्रेंड्स के साथ। तो एक जो गैपिंग हो रही है ना, ये गैपिंग बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मैम। एंड दैट्स व्हाई ना दे आर लिविंग इन द वर्चुअल वर्ल्ड, दे आर बिलीविंग इन दिस वर्चुअल लाइफ, एंड दिस इज कॉजिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। So what is your suggestion to those parents, how do they manage their problem, how they look after their children? This is my question ma'am. तो इसमें ऐसा है कि अगर आप वो पेरेंट जो आपको ऐसा लगता है कि हाँ बच्चों को बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, फर्स्ट तो उनको एक अच्छी पेरेंटिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है कि वो एक अच्छा सेमिनार अटेंड करें जहाँ उनको प्रॉपर पेरेंटिंग मिले। चलो वो भी नहीं कर सकते तो आप उनको
ये बता सकते हैं कि जो पेरेंट कूल है, काम है, उनके साथ उनकी गैदरिंग कर सकते हैं कि भाई कम एंड सी, वो दूसरे पेरेंट्स सुनेंगे कि कितने काम डाउन है यार, व्हाई वी आर सो हाइपर, उनका बच्चा कितना कूल है, हमारा बच्चा इतना डिप्रेस क्यों है, बिकॉज ऑफ अस। उनको ये रियलाइज करवाना चाहिए कैसे भी करके कि वो गलत कर रहे हैं, उनको वो गलत रास्ते पर लेकर जा रहे हैं बच्चों पर, उनके बच्चों को कुछ और करना है तो उनको वही करना चाहिए। चाहे वो इतनी सारी शॉर्ट फिल्म्स आती हैं, वैसा कुछ आप लगा सकते हो, उन पेरेंट्स को दिखा सकते हो, क्योंकि आप डायरेक्टली बोलोगे तो इट हर्ट्स, पेरेंट्स को हर्ट हो जाता है एंड दे विल नॉट लिसन टू यू ऑल्सो। वो उल्टा आपको ही कहेंगे कि द टीचर इज नॉट गुड, कुछ भी बोलता है पेरेंट्स के लिए, ऐसे बोल सकते हैं क्या, दिस इज रॉन्ग। आपको एक अच्छा एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा उन पेरेंट को लाने के लिए, ताकि वो समझ सके कि वो क्या गलती कर रहे हैं। चाहे एक शॉर्ट फिल्म लगाओ और साथ में सब पेरेंट्स को बुलाओ, जो पॉजिटिव है उनको भी बुलाओ, उनसे उनके बारे, वो जो पॉजिटिव पेरेंट्स हैं उनको माइक दो, उनके बारे में उनको बताने का मौका दो। जब दूसरे पेरेंट उनके बारे में सुनेंगे तो सुनने से भी काफी कुछ इंसान समझ जाता है कि यस, हम ये गलत कर रहे थे, हमें ये नहीं करना चाहिए। या फिर बच्चों से ऐसा एक्ट कराओ आप, आपकी क्लास में बच्चे हैं, उनसे आप एक ऐसा एक्ट कराओ कि इमोशनल एक्ट होता है कि पेरेंट्स के सामने, जैसे आपका ओपन डे होता है तभी आप पेरेंट्स के सामने एक ऐसा एक्ट कराओ बच्चों से कि बच्चों में ही कुछ पेरेंट बनेंगे, कुछ बच्चे बनेंगे, और वो ऐसा एक्ट करेंगे कि इस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो अच्छे वाले पेरेंट्स आके बोलेंगे नहीं, हम मतलब वो डिफरेंस दिखाओ उनको। जब तक दिखाएंगे नहीं, हाउ दे विल रियलाइज कि व्हाट दे आर डूइंग, मतलब क्या गलत कर रहे हैं उनको कैसे पता चले। बार बार दिखाने से कभी ना कभी तो दिमाग में क्लिक हो जाता है कि हमने ये गलती की है। और हर पेरेंट अपने बच्चे को प्यार तो करता ही है, ऐसा तो है नहीं कि प्यार नहीं करता, प्यार तो करता ही है, बस उनको राह दिखाने की जरूरत है। तो या तो आप एक्ट करवा के दिखा सकते हो बच्चों के थ्रू, और या फिर कोई शॉर्ट फिल्म करा सकते हो, या फिर कोई ऐसे सेमिनार रख सकते हो जिसमें उनको पेरेंटिंग मिल सके, गुड पेरेंटिंग मिल सके और वो सही रास्ते पर आ जाए। एंड मैम अभी कैसा होता है कि अभी के जो जनरेशन है, यंग जनरेशन, एंड जो 2000 के बाद जो जनरेशन आई है, इवन के पहले भी ये प्रॉब्लम होती थी, दैट्स कॉल्ड डिप्रेशन। तो क्या होता है कि जो अपने सपने अपने बच्चों पे थोपने के वजह से अगर वो बच्चे नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि वो कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं एक दूसरे से, कंपैरिजन की वजह से क्या होता है वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। फिर वो डिप्रेशन में जब भी आते हैं, क्योंकि अपने पेरेंट्स से या अपने दोस्तों से इतना खुल के बात करते नहीं है, शेयर करने की आदत होती नहीं है, तो फिर वो बहुत खराब हो जाता है। तो उस चीज से कैसे टैकल करना चाहिए, एंड उस टाइम में जब होते हैं तो क्या करना चाहिए? ये आप बच्चों के लिए पूछ रहे हो कि बच्चों को क्या करना चाहिए? हाँ, स्टूडेंट को जो भी ऐसा है, ऐसे सिचुएशन में जो है, आई एम श्योर कि कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन सबके लाइफ में आती है। यस यस, तो इसमें क्या है ना, एक तो बच्चे को एक कोई तो अपना होना चाहिए, जो चाहे फ्रेंड हो, कजिन हो, जिससे उसको अपनी बात शेयर करनी चाहिए। वो अकेले अकेले सोचता रहेगा तो बहुत डिप्रेशन आ जाएगा, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। फिर वो मेडिसिन वगैरह सब जाती है एंड इट लाइक स्पॉइल द एंटायर लाइफ, ये शुरू होता है ऐसा। तो इसलिए हमेशा एक फ्रेंड तो होना चाहिए, या फिर एक कजिन होना चाहिए, या एक सिबलिंग होना चाहिए, कोई भी एक ऐसा होना चाहिए बच्चे के साथ जो उसकी बात को शेयर कर सके। चाहे कोई एक अच्छा टीचर हो जो उसको समझ सके, जो उसे लगता है कि वो कभी लाइफ में उसको चीट नहीं करेगा, मतलब उसकी बातों को मजाक में नहीं लेगा, सीरियसली लेगा और उसको समझेगा और अच्छा गाइडेंस देगा। तो उसे हमेशा एक दोस्त तो ऐसा बनाना चाहिए जो उससे शेयर कर सके। फिर ऐसा होता है कि अपने पेरेंट्स से जितना कोशिश करे, वो कोशिश कर सकता है, अगर उसके जो टीचर हैं या जो भी उसके साथ है, वो अपने उसके पेरेंट्स से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करे, उनको समझाने की कोशिश करे कि भाई ऐसा मत करो, यू आर गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, तुम्हारा बच्चा गलत जगह पहुंच जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। तो आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो तो इम्पॉसिबल है, जो वो कर रहा है, वो चाहता है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो व्हाट यू आर आप सोच रहे हो वो आसमान में पहुंचाने की, वो जमीन पर भी नहीं चलता। सही। तो मतलब उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कोई एक इंसान तो जरूर होता है जिसकी पेरेंट्स सुनते हैं, चाहे वो, फिर वो बोलते हैं ना, साम दाम दंड भेद, कुछ भी चलता है। चाहे प्रिंसिपल के थ्रू जाओ या कोई सीनियर पर्सन जो स्कूल से है, जिनसे वो पेरेंट्स फील करते हैं हाँ भाई ऐसा एक्शन ले लिया जाएगा,
तो डर से भी कई पेरेंट्स को कंट्रोल में करना पड़ता है कि नहीं, जब वो किसी की नहीं सुनते तो भाई प्रिंसिपल बोले हम अपने आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे या फिर हम आपकी कंप्लेन कर देंगे या कुछ भी। आजकल तो काफी सारे लीगल ये चीज भी आ गई है कि हाँ पेरेंट्स को स्टॉप कर सकती है, क्योंकि काफी पेरेंट्स बहुत हाइपर हो जाते हैं कि सब कुछ कर ले। तो बच्चा सब कुछ नहीं कर सकता, वो भी एक जान है और एक ही लाइफ है उसके पास भी। तो वो जो चाहता है वो भी करेगा, साथ साथ में वो भी करेगा जो आप चाहते हो, थोड़ा बहुत। राइट। हाँ, ओके। सही टाइमिंग का बस वेट करना चाहिए। ये सही टाइम का बहुत ज्यादा जरूरत है, पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। पेशेंस रखो, जितना मिला उसमें सेटिस्फाइड रहो, उससे ज्यादा की कोशिश करो, मगर उसके पीछे मत पड़ जाओ कि तुझे लाना ही पड़ेगा, नहीं तो बस आज से कल से खाना पीना रहना बंद, ना टीवी मिलेगा, ना मोबाइल मिलेगा, ना फ्रेंड्स मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ पढ़ाई कर, मुझे 100 मार्क्स चाहिए ही तेरे, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा नहीं होता है। अगर 100 लाना है तो उसको खुद को मेहनत करने दो, उसके पीछे मत पड़ो, सिर्फ उसको टारगेट करो, उसका फोकस दिखाओ कि बेटा तेरे को ये करना है, तेरे को ये करना है, और उसके आगे पीछे तेरे को जो करना है कर, मुझे सिर्फ ये चाहिए। अगर तू कर सके तो मेरे लिए उतना कर देना। यू कैन रिक्वेस्ट, आजकल बच्चों को यू कैन रिक्वेस्ट कि बेटा ये कर लेना। यू कैन नॉट, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते तेरे को यही करना है। तो बच्चे भी आजकल वो नहीं रहे कि हाँ पापा कर लेंगे, ज्यादा बोलेंगे तो आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले, आपको कितने मार्क्स मिले थे, ये आंसर आते हैं बच्चों के। तो राइट। सबको अपनी अपनी एक लिमिट में रहना चाहिए, अपनी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए। मैम एक, आई थिंक हमारा टाइम यहाँ से जा रहा होने है। वाला है, तो एक मैसेज आप जो बच्चों को देना चाहती है, जस्ट टू मोटिवेट देम, एंड एक एक दो कोई डायलॉग के साथ, दैट बहुत अच्छा है, बहुत ठीक अच्छा है, होगा। अच्छा मैं एक बात बताती हूँ, मैं जिसमें बिलीव करती हूँ। जिंदगी मुश्किलें खड़ी कर कर आपको रुलाती है, लेकिन अगर इन मुश्किलों का सामना आप हंस के करो तो मुश्किलें भी कम हो जाती है और जिंदगी भी आसान हो जाती है। इसीलिए हमारा ये मानना है कि जीना है तो दिल खोल के जियो। वैसे भी जिंदगी में सिर्फ दो ही बातें होती हैं, हाँ और ना। अगर हाँ हुई तो तुम खुश, और अगर ना हुई तो छोड़ दो और आगे बढ़ो। इसी का नाम है जिंदगी, समझे? इट्स लाइक डेफिनेटली। दिस इज अ वेरी गुड थिंग लाइफ में। कभी भी रिग्रेट नहीं कर रही यार ये नहीं किया, ठीक है नहीं किया, आगे मौका मिलेगा तो कर लेंगे, और जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसी उसी को बहुत अच्छा करो। रिग्रेट करके अपने आप को, माइंड को ऐसे मत करो ये भी कर सकते थे हम, वो भी कर सकते, ठीक है मैं भी बहुत कुछ कर सकती थी लाइफ में, नहीं किया तो ना सही, अभी मौका मिल रहा है अभी कर लो, किसने रोका है? राइट। बहुत ही प्यारा मैम, बहुत इसीलिए ही मैं प्यारा सोच मैसेज है। इसीलिए मैं सोचती हूँ लाइफ में इम्पॉसिबल जैसा कुछ भी नहीं होता। अगर आप अपनी ड्रीम्स को पूरी शिद्दत से आप कोशिश करते हो करने की, तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है उसे पूरा करने के लिए। तो हर इंसान को अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, सोचना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, हार्ड वर्क करना चाहिए, और अपने लिए ऑनेस्ट रहना चाहिए, अपने प्रति ऑनेस्ट रहना चाहिए। दूसरों के प्रति तब रहोगे जब खुद के लिए ऑनेस्ट रहोगे कि यस मैं इतना करूंगा, एक लिमिट होनी चाहिए, इतना ही करूंगा, इसके आगे मैं ये नहीं करूंगा, इसके बाद मुझे ये करना है, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, एंड ऑफ द डे कुछ नहीं करूंगा। राइट। वाह मैम, ये ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं एक एक करके कुछ कुछ क्वेश्चंस आपसे ले रहा हूँ बच्चों के साइड से। ठीक है। एक एक क्वेश्चन दिव्यांश के साइड से है कि व्हाट इज सीक्रेट ऑफ लाइफ। बड़ा डीप क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। व्हाट इज सीक्रेट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सीक्रेट ऑफ लाइफ? आपको एक जन्म दिया है भगवान ने, से थैंक यू टू योर गॉड। आपको सोचने की शक्ति दी है भगवान ने, से थैंक यू टू योर गॉड। आपको ड्रीम्स और एक आपको ओवरऑल डेवलपमेंट दिया है भगवान ने, से थैंक यू टू द गॉड। दिस इज द सीक्रेट ऑफ लाइफ, दैट यू आर अ पार्ट ऑफ योर गॉड, एंड आपको एक ह्यूमन लाइफ दी है भगवान ने। तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर लो जो आप चाहते हो, क्योंकि जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा।
Right. This is the secret of your life. Understand yourself. Understand yourself. Plan your things. Be positive. Believe in your God and run and win. And never try to defeat anybody. तुम अपने आप से जीतो, दूसरों से जीतने की कोशिश मत करो. वाह. तो मैं एक और क्वेश्चन है, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं यश गेरा, तो उनका क्वेश्चन है, हाउ कैन स्टूडेंट्स नॉट कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन मार्क्स एंड ओवरऑल डेवलपमेंट, कि बच्चे मार्क्स पे कैसे कॉन्सेंट्रेट ना करें और अपने ओवरऑल डेवलपमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करें, ये क्योंकि अब जो हमारा सिस्टम है वो मार्क्स के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, इंडियन सिस्टम. तो ये बड़ी चैलेंजेस फेस करते हैं बच्चे कि अब हाँ ठीक है, सब कुछ पता है, ये सही है, ये गलत है, सब कुछ पता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमको तो सिस्टम ही फॉलो करना है. अब क्या करें, यहाँ पे क्या करें? एक बात बताऊं, अगर आपको कोई चीज पसंद है, जैसे आपको स्पोर्ट्स पसंद है, हाँ, अगर स्पोर्ट्स में क्या है, आपको क्या सिखाया जाता है? पंक्चुअलिटी सिखाई जाती है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, फोकसिंग सिखाया जाता है. एक ऐसी चीज है, और ओवरऑल आपकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है. तो ऐसी अगर म्यूजिक है, म्यूजिक में क्या है? कॉन्सेंट्रेशन सिखाया जाता है, वहां पे भी डिसिप्लिन आ जाता है, वहां पे भी परफेक्शन आ जाता है. तो ये जो चीजें हैं वही आपको स्टडी में भी चाहिए. आप अगर किसी एक चीज में फोकस करते हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, और जब आप ये सोच लेते हो कि मुझे मार्क्स तो अपने कंसिस्टेंट रखने ही है, दैट इज यू डोंट हैव चॉइस कि मैं पढ़ाई छोड़ के और सब कुछ कर लूं. यू डोंट हैव चॉइस, पढ़ाई तो आपको करनी ही है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू enjoy your thing, what is giving peace to your mind. पढ़ाई इज अ कंपल्शन, वो आपके लिए एक कंपल्शन है, वो तो मुझे करनी है, अदरवाइज फ्यूचर में मुझे कोई गिनेगा ही नहीं. एक डिग्री तो मेरे पास, एक अच्छी डिग्री तो होनी ही चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपना पैशन फॉलो करता हूँ. सक्सेस मुझे किसी में भी मिले, नॉट नेसेसरी मैं पढ़ाई करके ही सक्सेस लूंगा, मैं डॉक्टर इंजीनियर बन के. हमारे फील्ड में काफी ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एक्टर बन रखे, बिकॉज डॉक्टर बन के काम करके थक गए वो लोग. अब दे वांट टू फॉलो देयर पैशन, जो उनका बचपन से ड्रीम था कि यस मुझे एक्टिंग करना है, एंड रियली बहुत दिल से करते हैं, और वो सब चीजें उनको यहाँ पे भी काम आती है. तो ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि यहाँ जो कर रहे हो वो वहां नहीं मिलती है. तो मार्क्स आपको हर हाल में मिल जाते हैं अगर आप एक्सीलेंस के पीछे भागो. बस ऐसा ऐसा सोच लो कि यस मेरा डिटर्मिनेशन है कि मैं, हाँ जी जी हाँ, जब आप स्पोर्ट्स करते हो तो आपको परफेक्शन मिल रहा है, फोकसिंग मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है कि हाँ आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ रहा है. तो जब आप 4 घंटा पढ़ते हो तब भी आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर सकते हो, मगर आप 1 घंटा स्पोर्ट्स खेल के आके जब 1-1.5 घंटा पढ़ते हो तो फुल कंसंट्रेशन से पढ़ते हो, क्योंकि मेरे पास इतना ही टाइम है, मुझे अपना पैशन भी फॉलो करना है. तो मेरे पास 1.5 घंटे के अंदर मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, तो मुझे फुल कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा. मुझे ना किसी से बात करनी है, ना किसी के ऊपर डिस्ट्रैक्ट होना है, ना पानी चाहिए, ना खाना चाहिए, ना कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये पढ़ना है और ये कंप्लीट करना है. तो वो ऑटोमेटिक फोकस हो जाता है बच्चा. तो मार्क्स तो करना ही, मार्क्स इज नॉट अ चॉइस, मार्क्स इज अ कंपल्शन. बट उसके साथ अगर आपको हॉबी है तो अगर वो फॉलो करोगे तो मार्क्स अपने आप झक मार के अच्छी तरह से अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको. ऐसा है. अगर आप अपने आप को अपनी हॉबी में आप खुश हो तो आपको मार्क्स अपने आप अच्छे मिलेंगे. आप किसी भी चीज को देख लो, किसी भी अच्छी आप अपने आप को देख लो, आप खुद ही भी बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो, तो आप पढ़ाई अपने आप ही कर लोगे, एक डिग्री तो आपको मिल ही जाएगी, फिर प्रोफेशन आपको जहां आपकी किस्मत होगी ले जाएगा. वाह मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रशांत सिंह. हाँ, he want to ask how to focus on long term goal of success. आजकल इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस जो ऐसे हैं कि जो शॉर्ट टर्म सक्सेस प्रॉमिस करते हैं बट लॉन्ग टर्म करियर गोल नहीं बना सकते, तो वो लॉन्ग टर्म गोल पे कैसे फोकस करें? लॉन्ग टर्म गोल को अपने दिमाग में सोच लो, एकदम फोकस करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे गोल बनाओ, उसको कवर करते रहो. ये नेसेसरी नहीं कि आपने जो लॉन्ग टर्म गोल सोचा है वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप चलते जाओगे वैसे वैसे रास्ता दिखता जाता है. तो अब आप यही सोचते रहो मुझे वो करना है, वो करना है, वो करना है. आज से 20 साल पहले बाद की बात सोचना छोड़ दो. आज जो करंट सिनेरियो, किसी ने सोचा था कोरोना जैसी कोई बीमारी आएगी और सबको लॉकडाउन कर देगी? नहीं सोचा था. तो बिलीव इन टुडे,
लिव इन टुडे। हाँ, आज का गोल बनाओ, ये 6 महीने में, ये साल भर में मेरा ये टारगेट है, ये मुझे अचीव करना है। अगर आप स्टूडेंट हो, आप 10th में हो, 9th में हो, हाँ मुझे मेरी ये एग्जाम से ये स्टडी है, इसके साथ मुझे मेरी ये म्यूजिक फॉलो करनी है। मतलब इतना ही आप अभी सोच सकते हो। जो बड़ा है वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, बट आप जैसे जैसे आप चलते जाओगे आपको रास्ता दिखता जाएगा। एंड कीप योरसेल्फ पॉजिटिव। हमेशा अपने आप को पॉजिटिव थॉट में रखना चाहिए कि जो भी मुझे, अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है तो भगवान से सिर्फ इतना कह सकते हो आप कि थैंक यू, इससे खराब नहीं हुआ मेरे साथ, थैंक यू, इससे खराब नहीं हुआ, आपने जो दिया मुझे मंजूर है, थैंक यू सो मच मुझ पर इतनी कृपा करने के लिए। प्लीज ऑलवेज बी देयर विथ मी। एक ही भगवान से कहो रात दिन कि हमारे साथ हमेशा रहना, मुझसे कोई भी गलत काम मत करवाना। Wow. Ma'am, next question is from Neha Singh. She want to ask how you as a mom motivate your children in following their dreams. Yes, it's a very nice question. फॉलोइंग योर ड्रीम्स, एक चीज मैं बताती हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए एक प्लैक कार्ड जैसा बनाती हूँ, उसके ऊपर उनसे लिखवाती हूँ क्या उनको अचीव करना है। लाइक नॉट लाइक 20 ईयर्स पहले बाद क्या करना है, बस ये साल भर में या 6 महीने में आपको क्या अचीव करना है। तो दे हैव टू राइट देयर नेम, दे हैव टू राइट व्हाट दे वांट टू गेट इन देयर लाइफ। जैसे अगर उनको 9th स्टैंडर्ड में 97% चाहिए, 87% चाहिए टारगेट, फर्स्ट माय वो बेटे बच्चे का नाम और उसका वो टारगेट, वो उसको लिखना चाहिए और उसे वहां पर स्टिक करना चाहिए जहां वो रोज पढ़ने बैठता है, या जहां वो आता जाता है, या जहां वो सोता है, जो उसके सामने दिखाई दे। तो वो उसको बार बार उस चीज को, वो ड्रीम को दिखाई देता है, यस मुझे ये करना है, ये मुझे अचीव करना है। तो वो उसके दिमाग में हिट करता है सुबह शाम की मुझे ये करना है, तो वो अपने आप पढ़ने बैठ जाता है। या मुझे वायलिन बजाना है या गिटार बजाना है, तो मुझे आज ये म्यूजिक कंप्लीट करनी है, वो पहले से वो प्लान करता है, उस तरह से करता है। और हम लोग रोज रात को, एवरी डे वी सिट टुगेदर एंड हम हनुमान चालीसा करते हैं सब साथ में बैठ के, राम राम की माला करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं, एक दूसरे को थैंक यू कहते हैं और फिर जाकर सो जाते हैं। Right. और Very. ये हर पेरेंट को करना चाहिए, अपने बच्चों के साथ रोज रात को एटलीस्ट 15-20 मिनट्स अपने बच्चों के साथ बैठना चाहिए। और अगर पेरेंट्स नहीं बैठ सके तो बच्चों को पेरेंट के साथ जाके बैठना चाहिए कि मम्मी डैडी मुझे आपके साथ बैठना है, आपसे बात करनी है, आज पूरे दिन में मैंने क्या किया आपके साथ डिस्कस करना है, और आपसे पूछना है आपने क्या सीखा पूरे दिन में। ठीक है, बहुत बिजी लाइफ है, बट लाइफ तो रोज ही बिजी रहने वाली है। 5-10 मिनट तो अपनी फैमिली के लिए निकाल ही सकते हो, जिसके लिए आप जीते हो। अपने बच्चों को पैसे दे दिए, मोबाइल दे दिया, उससे कुछ नहीं होता है। लाइक फिर आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि आपको क्या चाहिए। आपको अपना टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की सिनेरियो में सबसे ज्यादा जरूरी है टाइम। एक दूसरे के साथ टाइम देना बहुत जरूरी है, एक दूसरे के साथ प्रेयर्स करना बहुत जरूरी है। फिर एक दूसरे के साथ जब इतने जुड़ते हो ना, तो एक फैमिली में कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, वो एक दूसरे को समझ लेते हैं। Right. Nice. Ma'am, next question is from Tanesh. बहुत बढ़िया सवाल है। हाउ टू मोटिवेट द डिप्रेस्ड पीपल। सबसे पहले तो ये कि जो डिप्रेशन में है, एक तो देख के हमको उसके एक्टिविटीज से पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है इसके साथ, बट हाउ टू हेल्प देम। हाउ टू हेल्प देम, क्योंकि वो ऐसा होता है कि जो पर्सन उस स्टेट में होता है वो किसी अननोन के साथ शेयर करने के सिचुएशन में नहीं रहता है, तो ऐसा अननोन पर्सन उसको कैसे हेल्प कर सकता है। अगर आप वो जो बच्चा डिप्रेशन में है उसको आप अगर जानते हो, समझते हो, तो आप ये भी जानते होगे कि उसको क्या पसंद है, वो किस तरह से मोटिवेट हो सकता है। तो उसके सामने उस तरह से एक्ट करो मोटिवेट होने का, कि हाँ उसके साथ वो ऐसी ही बातें करो जो उससे पसंद करती है, जो उसको मोटिवेट करती है। नॉट डायरेक्टली किसी की स्टोरी बता के उसको मोटिवेट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट योर ओन स्टोरी, नॉट नेसेसरी कि वो हकीकत होनी चाहिए, बट इनडायरेक्टली वो उसको मोटिवेट करनी चाहिए। सबसे बड़ा एम उसको किस तरह से मोटिवेट करना है, तो उसको उस तरह से चारों तरफ उसके इस तरह से माहौल क्रिएट करना चाहिए कि हर चीज उसको मोटिवेट करे और वो अपने आप को ओपन कर सके और उस इंसान से शेयर कर सके। तो पहले उसका ट्रस्ट जीतना बहुत जरूरी होता है। जब उसका ट्रस्ट जीत जाओगे तो वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाएगा, वो अपने आप ही अपने ओपन हो जाएगा उस इंसान से,
और जब वो ओपन हो जाएगा तो अपने आप डिप्रेशन कम हो जाता है। यू हैव टू शेयर, जितना आप शेयर करोगे अपने जिस पे आपको ट्रस्ट है उससे अगर आप ज्यादा शेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली आप अपना दिल ओपन करके उससे बता सकते हो और उसका सोल्यूशन मिल जाता है। वाह। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्रगति. So she wants to ask, ma'am, when you got to shoot your first shoot, then how do you feel? मतलब जब भी आपका पहला वो स्टेज एक्सपीरियंस था, तो कब हुआ था, कौन सा पहला आपका जो प्रोजेक्ट था वो था, एंड एट दैट टाइम व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? मेरा जो फर्स्ट प्ले था रंग शारदा में, पिता वो लाजू जी का कैरेक्टर था एंड मेरे सारे रिलेटिव्स फर्स्ट सीट पे बैठे हुए थे, लाइक फर्स्ट फुल रॉयल सीट मेरे सारे रिलेटिव्स थे, सब पेरेंट्स एंड अंकल्स एंड ऑल। तो मुझे पता था सब है वहां पे, तो वो एक नो डाउट अंदर जो बटरफ्लाईज होती है सब बहुत फास्ट फ्लाई करने लग जाती है। बट वही मैंने कहा ना, जाने के पहले 2 मिनट अपने आप को देना। हम लोग सब सारे के सारे जितने भी को एक्टर्स थे मेरे, हम लोग सब साथ में मिलते हैं, सब एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, क्योंकि थिएटर ऐसी चीज है जिसमें हमारे किरदार से ज्यादा को एक्टर का किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इज अ लाइव शो है। तुम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते कि कट एक्शन सेकंड सीन, ऐसा कुछ सीन नहीं होता। इज द फर्स्ट एंड द लास्ट सीन, जो भी तुम करोगे उसी से इफेक्ट करेगा तुम्हारे एक्टर। मेरा परफॉर्मेंस मेरे को एक्टर पे डिपेंड करता है, तो हम एक दूसरे को बहुत पॉजिटिव एनर्जी देते हैं कि भाई हमारा प्ले बहुत अच्छा होगा। अगर किसी ने कोई मिस्टेक की, वो मिस्टेक हमको पता है, ऑडियंस को नहीं पता है, तो हम उसको रिकवर कर लेंगे एक दूसरे का सपोर्ट करके, ना कि ये बताएंगे कि उसने मिस्टेक कर ली। जैसे मेरा फर्स्ट प्ले में ही मेरे को एक्टर ने एक छोटी सी मिस्टेक की थी, बट मैंने उसको कवर कर लिया, क्योंकि अगर मैं उस चीज में चली जाती कि उसने वो लाया ही नहीं, मैं कैसे बोलूं, तो सब गड़बड़ हो जाता था। मतलब किसी को पता ही नहीं चला कि वो मिस्टेक थी, बट हमारी टीम को पता थी, बट वो मिस्टेक नहीं थी, उल्टा उसी पे सबसे ज्यादा क्लैपिंग मिली। वो इज लाइक नॉट फिक्स, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ होगा, मगर वो हुआ तो सबको इतना अच्छा लगा कि इट वाज नेचुरल। ऐसा हो जाता है, तो इट इज लाइक डरना नहीं चाहिए, बटरफ्लाईज होती है, बट अपने एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करके हम कोई भी चीज को सक्सेस पा, किसी भी चीज में सक्सेस पा सकते हैं। और सेम ऐसा विथ माय फर्स्ट कैमरा, जब मेरा कैमरा का शूट था फर्स्ट, उस वक्त भी मुझे ऐसा लगा था, मुझे तो पता ही नहीं था कैमरे पे किस तरह से शूट करते हैं करके, प्रोफेशनल वे में। कि मैं एक सीरियल की लगी थी, एपिसोडिक किया था मैंने, तो क्राइम सीन था, उसमें भी मैं डॉक्टर ही बनी थी। तो उस वक्त कैसे सीन बोलना है, क्योंकि एक थिएटर, एक स्कूल अलग होता है, एक प्रोफेशन अलग होता है। जब आप स्कूल में कुछ सीखते हो, जैसे आप अकाउंट्स में कुछ डेटा सीख रहे हो, सब कुछ जो सीख रहे हो, जब आप पर्सनल लाइफ में जाते हो उसकी एंट्री सब डिफरेंट ही होती है। वैसे जब कैमरा आता है वो डिफरेंट ही होता है, और थिएटर इज टोटली डिफरेंट होगी। बस थिएटर में आप सीख जाते हो, आपके वर्ड्स पे, आपके स्पीच पे, आपके कंसंट्रेशन लेवल पे काम करते हो, और जब आपका कैमरा सामने आता है तो कुछ सीन ही डिफरेंट होता है उसका। राइट मैम, एक हमने वीडियो प्रिपेयर किया था, तो आई विल रिक्वेस्ट अनमोल सर, प्लीज आप प्रेजेंट करके मैम को एक बार वो ट्राई करिए, दिखा दीजिए प्लीज। आई होप कि आपको पसंद आएगा। वी ट्राइड आवर बेस्ट। ओह वाह। मैम, क्या आप ये स्लाइड के बारे में बताएंगे क्या? ये पिक्स कहाँ की है? अनमोल प्लीज आप प्रीवियस वाला स्लाइड पे करेंगे क्या प्लीज? मैम हाँ, ये कहाँ की है?
ये मेरे प्ले या की ये है उफ ये मोहब्बत, जिसका मैंने आपको डायलॉग मारा था। जब हम दोनों में एक एज के बाद जब कनेक्शन होता है, इज फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक दूसरे का साथ की जरूरत होती है। तो इज लाइक ये जो मेरे साथ में है, ही इज माय मेंटर है, वो मेरे फरीद सर हैं। उनका खुद का लिखा हुआ प्ले है, वो उनका खुद का प्ले है, ये उन्होंने पूरा डायरेक्ट किया हुआ है ये प्ले। एंड मैं उनकी मतलब होने वाली वाइफ बनी हूँ। मतलब अभी इस सीन में तो मैं उनकी लवर हूँ, यू कैन से। वाह, तो हम एक दूसरे एंड से बातें कर रहे हैं। वाह, नाइस। नेक्स्ट स्लाइड अनमोल। या मैम, ये अबाउट दिस स्कॉटलैंड की है, एक स्कॉटलैंड की है, जो सेकंड सीन में जैसे मैंने ये हाथ फोल्ड करके रखा है। तो हाँ, एडम सैनी जी हैं, ही इज द लीड इन दिस मूवी। यही आते हैं बाहर से, ही इज माय जिया जी इन दिस फिल्म। एंड हम दोनों जैसे सेट तैयार हो रहा है, तो हम यहाँ खड़े होके बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं हमारा इसके बाद एक्ट होने वाला है। तो वी वर डिस्कसिंग कि हमको किस तरह से परफॉर्म करना है। और हमारा हमेशा प्लान रहता था कि वन टेक फिनिश होना चाहिए, सेकंड टाइम बोलने का मौका नहीं देना चाहिए। दिमाग में सेट कर लेते हैं हम लोग कि हम एक दूसरे को इस तरह से कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि हम जो भी सीन करेंगे वन टेक में खत्म हो जाना चाहिए। तो एक दूसरे को मोटिवेट करते करते करते, इट्स लाइक अ फन। एक्टिंग इज नॉट लाइक अ डर, इट्स लाइक अ फन। बहुत मजा आता है उसमें करने में, और को एक्टर बहुत अच्छा हो तो और भी मजा आता है उसे करने में। तो राइट। ऐसे, और सेकंड जैसे यहाँ पे जो मैं नीचे जिनके मैं डॉक्टर की ड्रेस पहन रखी है, तो उसमें हम वही सीन होने वाला था कि मैं ऑपरेशन करने जाने वाली थी अंदर। तो सेट लग रहा था, तो हम दोनों बात कर रहे हैं। ये जो हमारे मेरे साथ बैठे हैं वो भी डॉक्टर हैं, जिन्होंने इनको ओके वेलकम किया था जब ये फॉरेन से आए थे। ओके ओके, नाइस। सर प्लीज नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे। या and to all the viewers, you can follow her on her Instagram account. Yeah, so please do follow her. And मैम बहुत बहुत धन्यवाद कि आप थैंक यू। अपने इतने बिजी शेड्यूल, बहुत बिजी टाइम से भी आप इतना एक प्रॉपर टाइम निकाल के उसमें से टाइम स्लॉट हमको दिया। एंड एक एक क्वेश्चन सारे बच्चे पूछे, सभी जितने भी व्यूवर्स हैं अपने अपने क्वेश्चन आई थिंक सबको मैंने कवर कर लिया। एंड आई एम वेरी सॉरी, माफ करना मुझे जिनके क्वेश्चन मैं नहीं ले पाया, बट आई ट्राइड टू पुट अप ऑल द क्वेश्चन। तो मैं चाहती हूँ कि आज से सब बच्चे अपने अपने आप को फॉलो करें, अपने आप को समझें, पॉजिटिव रहें, टारगेट फिक्स करें, अपने आप के लिए एक प्लैक कार्ड बना लें कि अपने अपने गोल्स और ड्रीम्स लिखना चालू कर दें उस पे, और उस पे वर्क करना चालू करें। अगर इन बच्चों में से कोई एक बच्चा भी इस चीज पे सक्सेस हुआ, तो आई फील मेरा यहाँ आना सफल हो गया। वाह वाह, सच अ ग्रेट मैसेज। एंड मैम फ्रॉम आवर साइड आप बहुत जैसा भी हमको लगा बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं, हम्बल है एंड हेल्पिंग है थैंक यू सो मच शिवम, आप भी एंड वैसे ही हो। एक्टिंग। एंड आई फील हमसे जो भी कनेक्ट होने वाला है सब वैसे ही होने वाले हैं, सब हम्बल होंगे, सब राइट, अच्छे दिल के होंगे। दिल के सब अच्छे होते हैं, सिर्फ अपने आप को फोकस नहीं कर पाते तो डाइवर्ट हो जाता है माइंड इधर उधर। सबका दिल अच्छा होता है, करेक्ट, भगवान ने सबको अच्छे दिल से ही पैदा किया है। राइट, सही बात है। तो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फिल्म। एंड हम जरूर स्कॉटलैंड जरूर देखेंगे और हम बस वेट कर रहे हैं, बस आ जाए वो। sure and all the best to you for this learning curve is really very good efforts you are taking। और बच्चे आपसे बहुत कुछ सीखे, आपके बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, बहुत सक्सेस मिले आपको लाइफ में। Thank you, ma'am. Thanks a थैंक यू, lot from our team and on the behalf of each and everyone here present here. Thank you, ma'am. Thanks. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे। Bye, ma'am. Thank you, ma'am.